Welcome to Ultimate Biology. Today we are going to learn new chapter, that is a principle of inheritance and variation. Here inheritance, heredity, आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक character, heredity character. All these character which are present on our body, all these character are the heredity character. आंखों का कलर है, नाक का शेप, then this ear, all such a character, ये बालों का ये पैटर्न, all such a type of character are the heredity character, आनुवांशिक गुण है. And all these heredity character get transmit from one generation to another generation. मेरे शरीर में ये सब कैरेक्टर जो है माता पिता से आए हुए कैरेक्टर है. That character get expressed on my body. All these character are the heredity character. हमारे पीढ़ियों में ये कैरेक्टर चलते हैं ऐसे, like this. In case of plant also heredity characters are there. फूल जो है उसका कलर heredity character. फूल that plant की height, that is a heredity character. Branches heredity character. Seed shape heredity character. Seed का color, that is also heredity character. All these character get transmit from one generation to another generation. And here word is inheritance. Inheritance means such a character which get a transmit from one generation to another generation, that is a inheritance. Principles of inheritance and variation. Variation we call it as a change, badal. And this variation attract, this variation, towards this variation साइंटिस्ट गेट अट्रैक्टेड. बहुत सारे साइंटिस्ट इस दौरान, मेंडल्स का जो पीरियड है इस दौरान, दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वेरिएशन. इतना सारा वेरिएशन नेचर में आया कहाँ से? इतने सारे प्लांट्स के स्पेसीज, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें भी वेरियस दैट जीनस, वेरियस स्पेसीज आर देयर. इन केस ऑफ दैट एनिमल, देन Pisces group is there, then that amphibians, then reptiles, then aves, then mammals, different types of mammals are there. इतना vast variation nature में आया कहाँ से? What is the basis of this variation? क्या बेस है इसका? What is the fundamental rules behind this variation? क्या तथ्य है इसके variations के? ये जानने के लिए डार्विन, वैलेस, देन मेंडल, इनके रास्ते अलग अलग थे लेकिन इनको खोजना एक ही था. हाउ दिस इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन द नेचर, हाउ दिस वेरिएशन टेक्स प्लेस इन द नेचर, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट. In this video we are going to learn the history of Mendel. और उसके बाद के जो वीडियो बनेंगे उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे the 7 pair of contrasting characters selected by the Mendel. Then the Mendel first law, that is a law of dominance, then law of segregation, then law of what? Independent assortment, incomplete dominance, co-dominance, like these Mendelian disorders, chromosomal disorders like this. Mendel name, that is a Gregor John Mendel. Birth takes place on 22nd July 1822. Silesian, now it is in Austria. मेंडल का परिवार एक गरीब परिवार है. फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बोलना पसंद करती थी. Now these Silesian, these Austria, now a part of this Czechoslovakia. पहले झेक एंड स्लोवाकिया ये अलग थे, अभी एक हो गई है. ब्रून ऑस्ट्रिया के अंदर, लाइक दिस. वहां मेंडल का ये जन्म हुआ है. एंड मेंडल डाइड, डेथ ऑफ मेंडल ऑन 6th January 1844. इतना ही मेंडल का जो है जीवन है. देन मेंडल की जो प्राइमरी जो शिक्षा है
The early education Mendel take in a monastery in Brno. Monastery मठ कहा जाता है उसको, या उसको हम विहार कहते हैं। वहाँ मेंडल रहा करते थे और उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वहाँ रह के मेंडल का हुआ है। Previously Brunn of these Austria। और मेंडल जब छोटे थे, मेंडल अपने पिताजी के साथ उनके खेत में जाते थे। मेंडल के पिताजी साइंस स्टूडेंट हैं एंड मेंडल फादर परफॉर्म द हाइब्रिडाइजेशन इन देयर क्रॉप फील्ड। उनके पिताजी से ही विरासत में मेंडल को ये हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक है वो सीखने को मिली है। छोटे थे मेंडल तब फ्लावर्स को पकड़ना, उसको व्हेन द फ्लावर इज इमैच्योर एट दैट टाइम उसको ओपन करना, देन उसमें के जो मेल कैरेक्टर है वी कॉल इट एज एंथर। इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल देन द एंथर उसको रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और विद द हेल्प ऑफ सीजर। टुडे वी कॉल इट एज इमैस्कुलेशन। ये मेंडल बचपन से ही जानते थे, उनके पिता से ही उनको ये सब पता लग चुका था। एंड हाउ द टू वेराइटी गेट क्रॉस, कैसे उसको क्रॉस किया जाता है, कैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, क्यों बैग डाली जाती है उसके ऊपर पेपर की, टैगिंग प्रोसेस क्या होती है, बचपन में ही मेंडल्स को ये पिता से पता था। उनकी रुचि जो है इसमें बचपन से ही थी। नाउ सी हियर, जैसे ही उनका प्राइमरी एजुकेशन पूरा होने के बाद में मेंडल स्टडीड मैथमेटिक्स देन फिजिक्स में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस एट दिस वियना यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1851 टू दिस 1853। उस यूनिवर्सिटी में मेंडल्स पढ़े और उस यूनिवर्सिटी में मेंडल काफ़ी होशियार थे, इसलिए मेंडल इज अ मेंबर ऑफ जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ दैट वियना यूनिवर्सिटी इन 1853। और इसी दौरान जो है मेंडल को एक रिसर्च जो है उसमें काम करने का मौका मिला। मेंडल carried out their experiment or they perform research on damage of a pea weevil on pea seed। ये pea यानी मटर, वटाने, pea plant, पायसम सटाइवम, pea weevil ये है इंसेक्ट, कीटक है ये, उस प्लांट पे आने वाली बीमारी है और ये कीटक की वजह से ये जो पी प्रोडक्शन है, ये जो पायसम सटाइवम का जो प्रोडक्शन है, वटाने जो है या मटर जो है, इसका प्रोडक्शन कितना इंक्रीज होता है या कितना डिक्रीज होता है, सीड के ऊपर इसका क्या असर होता है, ये प्रोजेक्ट था। मेंडल ने उसके ऊपर काम किया है। मेंडल परफॉर्म द रिसर्च ऑन डैमेज ऑफ दिस पी वीवेल ऑन द पी सीड और उनकी रुचि और ज़्यादा बढ़ गई टुवर्ड्स दिस प्लांट वी कॉल इट एज अ पायसम सटाइवम, वटाना वी कॉल इट एज अ मटर का प्लांट लाइक दिस। देन मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए ऑन पी प्लांट वी कॉल इट एज अ पायसम सटाइवम प्लांट। इस दौरान मेंडल ने स्कूलों में पढ़ाया भी है, लेकिन एजुकेशन की डिग्री जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने टीचिंग जॉब छोड़ दिया और चर्च में एक फादर जो है उसका उन्होंने जॉब स्वीकार किया। और चर्च के सामने की जो ज़मीन होती है, गार्डन, वहाँ मेंडल ने छोटे छोटे प्लॉट्स बनाना शुरू कर दिया और
मेंडल एक देश से दूसरे देश में जब भ्रमण करते थे उस दौरान मेंडल को शौक था, मेंडल कलेक्ट द seeds of Pisum sativum of different countries. That collection of these seeds of Pisum sativum pea plant, उसके सीड्स को जमा करना, स्टोर करना, एक जगह रखना, we call it as a germ, GERM, germ plasm collection. और ऐसे बहुत सारे वेराइटी के जो सीड्स है मेंडल ने कलेक्ट किए. And then Mendel started experiment on a pea plant. We call it as a Pisum sativum. बचपन से ही हाइब्रिडाइजेशन कैसे करना है मेंडल को पता था. उसके बाद रिसर्च भी उसी में ही उनको मिला. That is a research on damage of this pea weevil on pea seed. इसलिए मेंडल को ये प्लांट के बारे में पहले से ही ज़्यादा पता था. एंड मेंडल अट्रैक्ट टुवर्ड दिस प्लांट बिकॉज मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दे आर प्रेजेंट इन दिस प्लांट. ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं ये प्लांट में. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर, यानी एक प्लांट टॉल है तो दूसरा प्लांट डॉर्फ. ये अपोजिट कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है. इन सम प्लांट रेड दैट फ्लावर, in some plant white flowers appear like this. तो वेराइटी में एक प्लांट है उसको लाल फूल लगते, तो दूसरे जो प्लांट है उसमें सफ़ेद फूल लगते हैं. अगेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. देन इन सम प्लांट राउंड सीड इज देयर एंड इन सम प्लांट wrinkled सीड इज देयर. अगेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. इन सम प्लांट येलो cotyledon present in the seed, in some plant, in some variety green cotyledons are present. Like these are many contrasting characters they are present in the plant, due to which Mendel attract towards this plant. We call it as a Pisum sativum, or we call it as a pea plant, Watane. We call it as a मटर. हमारे सबके घरों में प्रेजेंट होते हैं मटर. हमारे ही नहीं, जितने देश है सब देशों में, सबके घरों में मटर होता ही है. और सारे देशों में इसको लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, और लोग इसको पसंद भी करते हैं एज अ फूड मटेरियल. सो दिस अ Pisum sativum, it is a cosmopolitan in nature, and that is one of the reason that Mendel select this plant Pisum sativum for his experiment. It is cosmopolitan in nature, then it is easy to grow. रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं इसमें. 5-6 महीने में ही रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं. इजी टू ग्रो. नीचे स्टूल पे बैठ के जो है इसमें इमेस्कुलेशन कर सकते. बैगिंग प्रोसेस वेरी इजी होती है इसमें. कैरेक्टर्स, मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट. आउट ऑफ मोर दीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल सिलेक्ट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So many reasons are there why Mendel select this Pisum sativum for his experiment. Easy to emasculate, easy to pollinate, easy for bagging process. Then the results which are there, manually we can calculate the results of this plant, or by that Punnett square method like this. Easy to grow, cosmopolitan in nature, so many contrasting character. ऐसे बहुत सारे reasons है due to which Mendel select this plant Pisum sativum, मटर और वटाना for his experiment. And Mendel carried out experiment from 1857 to 1864 और 1856 to 1863. ऐसे 2 dates अलग अलग बुक्स में आते हैं. इसलिए आते हैं क्योंकि मेंडल जब जीवित थे तब ये जो रिसर्च है मेंडल का, ये किसी को उस वक्त समझ में ही नहीं आया. आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल, जब मेंडल के ये सब कंसेप्ट को फ्रेंच लैंग्वेज जो है उससे ट्रांसलेट करके जो दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज उसमें लिखना शुरू किया,
तो डेट्स में थोड़ा वेरिएशन आया है। कुछ बुक्स में मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो 1857 दैट इज 1857 to 1864 ये डेट्स है, and in some books that is 1856 to like this 1863 is the period that Mendel performed their experiments on Pisum sativum plant like this. मेंडल ने सबसे पहले ये जो प्लांट्स लिए हैं, जो सीड्स कलेक्ट किए हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन काफ़ी उसके ऊपर जो है शुरू से ही उन्होंने रिसर्च इस प्लांट के ऊपर किया था। लेकिन व्हाई द वेरिएशन टेक्स प्लेस, what is the basis of this evolution, why these characters they are separate, or why variation takes place in the nature, what is the basis of this variation, ये उनको खोजना था। इसलिए मेंडल ने सबसे पहले होमोजाइगस प्लांट्स बनाए। व्हाट इज होमोजाइगस प्लांट? एक प्लांट है टॉल, एक प्लांट है डॉर्फ। जो प्लांट टॉल है उसमें दोनों कैरेक्टर मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों टॉल लाना है। इसके लिए 7 साल लगे हैं मेंडल्स को। बोथ द कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, टॉल कैरेक्टर मैटरनल के तरफ से और पैटर्नल के तरफ से, मेल और फीमेल दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक ही प्लांट में आना चाहिए। वो जो टॉल कैरेक्टर है वो, उसके लिए 7 साल लगे। ये होमोजाइगस कहा जाता है। होमो मीन्स सेम at that zygous level, same character, tall. So Mendel firstly Mendel ने homozygous plants बनाए, and these homozygous plant जो बनाए मेंडल्स ने, we call it as a pure line, इसी को pure line कहा जाता है। homozygous plant यही pure lines है, and to form these pure lines or to form these homozygous plant, tall, dwarf, homozygous, round seed, homozygous, wrinkle seed, homozygous, yellow cotyledon seed, homozygous, then green cotyledon seeds के प्लांट homozygous बनाने के लिए मेंडल को 7 साल लगे, तब जाके homozygous प्लांट बने। एंड दिस इज द सक्सेस ऑफ मेंडल। यही सक्सेस है, यही जो homozygous प्लांट्स है जो मेंडल ने बनाए हैं, इसी के वजह से मेंडल को सक्सेस मिला है। बाकी जो भी साइंटिस्ट और दूसरे जगह काम कर रहे थे उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके प्लांट से एनिमल होमोजाइगस नहीं थे। होमोजाइगस प्लांट और प्योर लाइन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लांट्स बाय मेंडल इज द सक्सेस ऑफ दैट मेंडल। मेंडल फर्स्ट फॉर्म homozygous plant, or we call it as a pure line. And to form this homozygous plant and pure line, Mendel takes near about 7 years. 7 साल लगे मेंडल्स को। टॉल प्लांट हम अगर मार्केट गए, मार्केट से अगर पायसम सटाइवम के सीड हमने खरीद के लाए, या हमारे घर में जो प्रेजेंट है वो सीड हाथ में लेने के बाद में आप लोग बता सकते हैं कि कौन से सीड में से टॉल प्लांट निकलेंगे और कौन से सीड में से डॉर्फ निकलेंगे? नहीं बता सकते, क्योंकि मिक्स कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं। लेकिन वो अगर हम एक फील्ड बना के उसके अंदर लगाएंगे, वो ग्रो होने के बाद में आंखों से जब हमको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसके दिखेंगे, इजीली हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि दिस प्लांट आर द टॉल प्लांट, और उसमें के कुछ प्लांट जो है वो डॉर्फ प्लांट है। जो टॉल प्लांट है उसको निकाल के एक प्लॉट हमको बनाना है, टॉल प्लॉट, और जो डॉर्फ है ऐसे छोटे छोटे, उनको दूसरे प्लॉट में लगाना है। वो प्लॉट हम कहेंगे उसको डॉर्फ प्लांट। और ये टॉल प्लांट है, इसके सीड्स हम कलेक्ट करेंगे, डॉर्फ प्लांट के सीड्स कलेक्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन में, और नेक्स्ट ईयर और लगाएंगे उसको। लगाने के बाद में जो टॉल प्लांट के जो सीड्स हमने लगाए हैं उसमें से ज़्यादा टॉल प्लांट्स आएंगे, और लेकिन उसमें और डॉर्फ प्लांट भी आएंगे, क्योंकि कैरेक्टर उसमें सेपरेट अभी नहीं हुए। और जो डॉर्फ प्लॉट है उसमें ज़्यादा डॉर्फ आएंगे, लेकिन कुछ टॉल आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऐसे में जो टॉल प्लॉट है जिसमें कुछ डॉर्फ आए हैं उसको निकालना है और डॉर्फ में लगाना है, और डॉर्फ का जो प्लॉट है जिसके अंदर ज़्यादा डॉर्फ है और कुछ टॉल आए हैं उनको निकाल के टॉल में लगाना है। ये प्रैक्टिस आपको
बाय सेल्फ पॉलिनेशन 7 ईयर्स करना है। मेंडल ने 7 साल करने के बाद में 7 साल के बाद ऐसी स्थिति आई कि टॉल प्लांट के सीड्स लगाने के बाद में सब के सब प्लांट टॉल ही आए, और डॉर्फ प्लांट के सीड्स लगाने के बाद सब प्लांट डॉर्फ ही आए। यानी दोनों कैरेक्टर, विच वन, मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर, एक मैटरनल कैरेक्टर एक पैटर्नल जो जीन्स है, ये दोनों डोमिनेंट आने के लिए कितने साल लगे? 7 साल। होमोजाइगस प्लांट बनने के लिए, प्योर लाइंस बनने के लिए 7 साल लगे मेंडल को। और उसके बाद मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। इतना पेशेंस था मेंडल के अंदर और इतने क्लियर कंसेप्ट थे मेंडल के उस वक्त, जिस वक्त न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइन नहीं था, उस वक्त क्रोमोसोम पता नहीं था, उस वक्त व्हाट इज द जीन ये शब्द भी नहीं था। दैट जीन इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, और दैट डीएनए कॉइल एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम ये भी नहीं पता था। नथिंग, ना क्रोमोसोम का पता था, ना जीन्स का पता था, ना न्यूक्लियस का पता था, नथिंग। लेकिन मेंडल कहा करते थे कि देयर इज सम फैक्टर, कुछ फैक्टर है इस प्लांट में जिसकी वजह से इसके फूल का कलर जो है लाल आता है। देयर इज अ फैक्टर ड्यू टू विच दिस प्लांट इज अ टॉल, इसके अंदर टॉल फैक्टर है। टुडे ये जो डॉर्फ प्लांट है इसमें डॉर्फ फैक्टर प्रेजेंट है। राउंड सीड, उसमें राउंड सीड जो आ रहा है बिकॉज दैट फैक्टर इज प्रेजेंट इन दिस प्लांट। टुडे ये जो फैक्टर जो मेंडल लिखते थे, इस फैक्टर को आज हमने नाम दिया है जीन, GENE जीन, एंड दैट जीन इट इज मेड अप ऑफ DNA, एंड दिस जीन गेट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। DNA ये कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है बाय द हेल्प ऑफ गैमेट। एनिमल्स में स्पर्म एंड ओहम, और प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन, एंड सेकंड वी कॉल इट एज द एग, ये हिस्सा लेते हैं फर्टिलाइजेशन में। एंड द कैरेक्टर विच इज देयर हेरिडिटी कैरेक्टर, द फैक्टर ऑफ दैट मेंडल, और द जीन्स जो आज हम पढ़ रहे वो आते हैं वहाँ इन द आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन दैट प्रोजेनी बेबी लाइक दिस। ये है। तो मेंडल जो है उनका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर था, बहुत ही क्लियर था। उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उनको उनके कंसेप्ट डाइजेस्ट नहीं हुए, क्योंकि वो काफ़ी दूर की उनकी सोच थी, 100 साल आगे की उनकी सोच थी, और उनको मेंडल को उस वक्त जो है समझ नहीं पाए। नाउ सी हियर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क इन 1864, इन 1864 मेंडल के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए। दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मेंडल को खुशी हुई, जो साइंटिफिक वर्ल्ड की जो मीटिंग होती है, जो कॉल की है मेंडल, या जब हुई थी, तो मेंडल अपने जो रिसर्च है, जो पायसम सटायम के सीड्स है या जो रिजल्ट्स है वो लेके गए। सब साइंटिस्ट वहाँ बैठे हैं, अपने अपने रिसर्च को बता रहे हैं। और जब मेंडल का टर्न आया तब मेंडल ने कहा कि ये टॉल प्लांट के सीड्स है, ये डॉर्फ प्लांट के सीड्स है, और ये टॉल प्लांट के सीड्स और ये डॉर्फ प्लांट के सीड्स को होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ पायसम सटाइवम बोटानी के जो प्लांट्स है, इनको क्रॉस करने के बाद इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल। आप सबको ये लगा कि टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करने के बाद इंटरमीडिएट आना चाहिए, ये कैसे कह रहे हैं कि ऑल प्लांट्स आर टॉल। और उन्होंने कहा इट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज अ डोमिनेंट फैक्टर्स आर देयर, दैट डोमिनेंट फैक्टर्स आर ओनली एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको कहूँ, फॉर एग्जाम्पल है ये हमारे जो स्किन के कलर्स है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक समझने के लिए अगर हम उसको समझना चाहते हैं ह्यूमंस के बॉडी के ऊपर, तो एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जो निग्रो होते हैं, निग्रो रेस, यानी ऐसे निग्रो की रेस जिसमें माता पिता दोनों भी ब्लैक है, ब्लैक कलर्स है स्किन का, तो उनको जो बेबीज़ होंगे वो सब ब्लैक ही होंगे, यानी उनके पूरे रेस में ब्लैक 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 दिस अ जीन, दैट इज़ अ डोमिनेंट जीन्स। माँ की तरफ से भी डोमिनेंट जीन्स है, पिता की तरफ से भी डोमिनेंट जीन्स है, ब्लैक ब्लैक लाइक दिस। दोनों भी वो बेटे में है, दैट जो भी है वहाँ के इंडिविजुअल्स दे आर होमोजाइगस।
उनके शरीर के अंदर माता की तरफ से और पिता की तरफ से ब्लैक ब्लैक दोनों जीन्स आते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑस्ट्रेलियन जो फीमेल है वाइट रेस की, तो उनके शरीर में जो है दोनों जीन्स जो है माता पिता से जो है वो वाइट जीन्स आए हैं, स्किन कलर के, लाइक दिस, फेयर कलर के। ऑन वन साइड बोथ ब्लैक जीन्स, होमोजाइगस। ऑन अनदर साइड ऑस्ट्रेलियन महिला अगर हम लेंगे तो दोनों जीन्स वाइट जीन्स, लाइक दिस, होमोजाइगस। अब इन दोनों की अगर शादी हो गई तो F1 जनरेशन जो होगा उसमें जो बेबी होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि उसको एक जो है स्ट्रिप उसको ब्लैक आएगी, फिर नीचे वाइट आएगी, फिर ब्लैक आएगी, फिर वाइट आएगी, लाइक दिस। ऐसा थोड़ी बेबी होता है। When the homozygous black cross with the homozygous white in F1 जनरेशन, बेबी जो होगा वो ब्लैक ही होगा। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि ब्लैक इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डोमिनेंट कैरेक्टर गेट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ये मेंडल ने वहाँ कहा था, उन्होंने खोज के निकाला था इसको, लेकिन उस वक्त वो साइंटिफिक वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। साइंटिफिक वर्ल्ड का कहना था कि दिखाओ, उनका कहना था कि देयर इज अ फैक्टर इन दिस प्लांट, टॉल फैक्टर, पायसम सटायम में। तो वो कहते थे कि दिखाओ टॉल फैक्टर कहाँ है, कहाँ से दिखाएंगे, उसके अंदर चम्मच डाल के निकालेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मेंडल के पास रिजल्ट है, ऑन दैट बेसिस मेंडल अपना कहते थे, लेकिन लोग साइंटिफिक वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद मेंडल ने सेकंड लॉ पुट फोर्थ करने की कोशिश की, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। When the gamete formation takes place at that time, the character which are there, that character get separates in the pollen grain or in that egg. Character segregate होते, separates होते, और साइंटिफिक वर्ल्ड ने कहा कि दिखाओ, वेयर इज द प्रूफ। उन्होंने कहा ये प्रूफ है, ये रिजल्ट्स है, लेकिन उन्होंने कहा दिखाओ कहाँ है वो जो फैक्टर आप कह रहे कहाँ है। एंड मेंडल गेट क्रिटिसाइज और हंस रहे, साइंटिफिक वर्ल्ड जो है उनके ऊपर वहाँ हंस रहा है, क्योंकि उनको उस पीरियड में ये लेवल, ये काफ़ी ऊपर की लेवल थी मेंडल्स की। एंड मेंडल पुट फोर्थ थर्ड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट कैरेक्टर गेट सेपरेटेड सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, लाइक दिस। तो काफ़ी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इसमें यूज़ किया, मैथमेटिक्स बायोलॉजी में यूज़ किया, ये वो, और उन हंसते हंसते उनके सीड्स को उठाना, कुछ लोगों को खाना, वो सीड्स को फेंकना, लाइक दिस, ये सब बातें होने लगी। एंड मेंडल गेट क्रिटिसाइज इन दैट मीटिंग। मेंडल, ड्यू टू दिस बिहेवियर ऑफ द साइंटिस्ट, मेंडल डिसअपॉइंटेड। लेकिन उस मीटिंग में एक साइंटिस्ट थे, डार्विन और वैलेस। डार्विन गैलापागोस आइलैंड में काम कर रहे, वो भी घूम रहे बेनेगल जहाज को लेके अलग अलग देशों में। वैलेस वो भी काम कर रहे टापू के ऊपर, ऑन इवोल्यूशन, हाउ द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन द नेचर, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन। यही उनका भी काम, जो मेंडल का है वही काम है, लेकिन रास्ते अलग अलग है, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है, लाइक दिस। डार्विन एक ही साइंटिस्ट है जिन्होंने वहाँ उठकर कहा कि क्रिटिसाइज मत कीजिए, ये वर्क जो इन्होंने किया है ठीक है, हम नहीं समझ पा रहे इसको, लेकिन इनका मार्ग अलग हो सकता है, हमारा मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन हमको जाना एक ही जगह है। मेंडल सपोर्ट द वर्क ऑफ डार्विन सपोर्ट द वर्क ऑफ मेंडल। एक ही साइंटिस्ट है उस वक्त, डार्विन, जिन्होंने मेंडल को सपोर्ट किया। बट मेंडल गेट क्रिटिसाइज एंड मेंडल फुल्ली डिसअपॉइंटेड, मेंडल डिसअपॉइंटेड बाय दिस बिहेवियर, लाइक दिस। और मेंडल ने पायसम सटाइवम जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद आफ्टर 1866 मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन अनदर प्लांट्स। जो 1866 के पहले, इन 1864 मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट ये कंप्लीट किए थे, मेंडल ने एक पेपर पब्लिश किया, मेंडल पेपर, दैट इज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये टाइटल है उस पेपर का, मेंडल्स का अपना।
एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रेंच, क्योंकि मेंडल फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे, फ्रेंच लैंग्वेज में कहा जाता है दैट वर्सुची उबर फ्लेलेंजेन हाइब्रिड्रीडेन, ये फ्रेंच लैंग्वेज में उसका टाइटल था। लेकिन मेंडल डिसअपॉइंटेड होने के बाद में मैं वो पेपर ज़्यादा लोगों ने पढ़ा भी नहीं और वैसे ही धूल खाता पड़ा रहा। मेंडल ने उसके ऊपर रिसर्च करना भी छोड़ दिया, डिप्रेस मूड में थे मेंडल। लेकिन उसके बाद मेंडल ने और दूसरे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 1866 मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन hawksweed. These hawksweeds we call it as a Heraceium species. 26 species जो है ये प्लांट्स के मेंडल ने स्टडीड, मेंडल ने उसको उसके ऊपर रिसर्च किया एंड मेंडल फेल टू कंक्लूड और मेंडल फेल ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस रिसर्च। उनको कंक्लूजन जो है उसके ऊपर वो यानी ये जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ उसका कंक्लूजन मेंडल लिख नहीं पाए। व्हाई? बिकॉज इन दिस प्लांट वन फिनोमिना इज देयर, दैट फिनोमिना वी कॉल इट एज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन के बगैर फलन नहीं होता है, उसके बगैर विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन इज देयर। वी कॉल इट एज एपोमिक्सिस और वी कॉल इट एज अगैमोस्पर्मी। गैमेट फ्यूज नहीं होते फिर भी स्पर्मी, दैट सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दिस प्लांट। दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना। और मेंडल को उस वक्त ये ज्ञात नहीं था और इस वक्त मेंडल का ये जो पीरियड है इस वक्त व्हाट इज एपोमिक्सिस, हाउ इट टेक्स प्लेस, इसके बारे में जानकारी नहीं थी और ना मेंडल उसको जान पाए एंड दैट इज अ फेल्यूर ऑफ दैट मेंडल देयर। और मेंडल डिसअपॉइंट हुए। उसके बाद मेंडल ने ये नेक्स्ट दैट इज अ हनी बी, मधुमक्खी जो है उसके ऊपर भी रिसर्च किया। मधुमक्खी में एक रानी होती है, उसके अंदर वर्कर्स होते हैं, उसके अंदर ड्रोन्स होते हैं। रानी और वर्कर ये फीमेल होती है और ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं। रानी किसी एक ड्रोन के साथ ऊपर जाके मेट करती है, उसके बाद में नीचे आते वक्त जो मेल है मर जाता है, रानी आके अंडे देती है, फर्टिलाइज्ड एग। Those egg are the fertilized egg. From that fertilized egg, female comes out, that is a worker. और जब रानी को लगता है कि